معزز ناظرین السلام علیکم کرشی درشن یعنی زرعی منظرنام ہیت تہندس خدمت مز حاضر دوستو تہ پتہ کہ پور ملکس من ونکس کووڈ-19 چلان کورونا وائرس کن واریاہ لوک ونکس پریشان تو وچان کہ یم وقت یہ مارچ رتس مز کووڈ-19 آو ام سی گو زندگی ہند پریت کھانا شعبہ متاثر یم زن اقتصادی سرگرمی تم گئی ٹھپ تو وچان کہ واریاہن لوکن ہند یس روزگار سہ گو کم واریاہن لوکن ہز آمدنی گئی متاثر تو ام کن گئی بیہم لوک زیادہ پہن پریشان یہ صورتحال نظر تل تھوت یم زن سان ملک وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی تمو کور گۄڈٕ اکھ یوجنا کر تمو شروع یتھ زن پرائم منسٹرس غریب کلیان یوجنا ونان ام سۭتۍ سپدۍ واریاہ لوک مستفید واریاہن لوکن آئی مختلف مراد دن توٚمُل آو مفت تقسیم کرنہٕ مگر امہِ پتہٕ کوٚر بیاکھ اکھ پیکیج وزیر اعظمن اعلان سُہ گوٚو 12 مئی یتھ زن آتم نربھر بھارت ابھیان ونان یعنی سیلف ریلائنٹ انڈیا کیمپین تاکہ اس گژھِ خود انحصار سپدن اس گژھِ پانہٕ پٲداوار ہیٚکن حٲصِل کٔرِتھ اس گژھِ واریاہ چیٖز گھریلو سطحس پٮ۪ٹھ تیار ہیٚکن کٔرِتھ تاکہ یُس زن عام لوکن ہُنٛد روزگار تہِ بڑِ ہا تہٕ مُلک تہِ کرِ ہا ترقی اتھ منٛز آو لگ بگ 20 لچھ کرور رۄپین ہُنٛد پیکیجُک آو اتھ منٛز مد تھاونہٕ تاکہ یم زن مختلف طبقہٕ چھِ سماجٕکۍ یم گٔژھۍ مستفید سپدٕنۍ اتھ منٛز آو خاص کر زراعتس کُن آو زیادٕ پہم توجہ دِنہٕ تہٕ یُس زن یہ پیکیج چھُ 20 لچھ کرور رۄپین ہُنٛد امیُک یم زن خدو خال چھِ تِم کٔرۍ یم زن سانہِ ملکٕکۍ یم زن وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن جی تمو کر امک پریس کانفرنسن دوران کر یمو امک خدو خال پیش تو ات مز آو زیادہ پہم توجہ دن زراعتس کنت تو امک یم زن ویٹ پوٹ یم زن پوائنٹس یم زن یمو پریس کانفرنس من ذکر کر تم یت پٲٹھۍ سُہ گوٚو یہِ کہِ یم زن یمو لوکو قرضہٕ نِمُت چھُ یمو زمیندارو قرضہٕ نِمُت چھُ یمن آو موریٹوریم دِنہٕ 3 رٮ۪تن یعنی اتھ قرضس پٮ۪ٹھ چھُ یمن 3 رٮ۪تن کٕہٕنۍ قٕسط برُن امہِ علاوٕ چھُ یمن انٹرسٹ سبوینشن آو دِنہٕ یعنی یمن آو یُس زن سوٗد اتھ منٛز چھُ اتھ منٛز آیہِ مُراعات دِنہٕ امہِ علاوٕ چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ امیِکۍ یم زن نُکات چھِ تِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ گوٚو 30,000 کرور رۄپین ہُنٛد اکھ ورکنگ کیپٹل آو زرعی شعبہٕ خٲطرٕ مرتب کرنہٕ امہِ علاوٕ چھِ 4,200 کرور رۄپین ہُنٛد آو یُس زن مد تھاونہٕ بیٚیہِ انفراسٹرکچر یُس چھُ اتھ ترقی دِنہٕ خٲطرٕ آیہِ یم 4,200 کرور رۄپیہِ وضع کرنہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس زن کریڈٹ کارڈن ہُنٛد سسٹم چھُ کسان کریڈٹ کارڈ یہِ تہِ آو تھوڑا وسیع کرنہٕ اتھ منٛز ین مزید کینٛہہ نٔوۍ لچھِ بٔدۍ یم زن کسان کریڈٹ کارڈ چھِ یم ین جٲری کرنہٕ تہٕ اتھ منٛز ین کینٛہہ کنسیشنل قرضہٕ دِنہٕ یمن زمیندارن اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یُس زن مزید یم زن اکھ 14,500 کرور رۄپین ہُنٛد یم زن مد آو تھاونہٕ سُہ آو پی ایم کسانس تحت تھاونہٕ اتھ منٛز تہِ چھُ ونکیٚنس کرور بٔدۍ رۄپیہِ زمیندارن ہٕنٛدِس بینک کھاتس منٛز براہ راست یِوان تراونہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس زن اہم یُس زن وزیر خزانہن ذکر کوٚر سُہ گوٚو ایسینشل کموڈٹیز ایکٹ 1955 چھُ اتھ منٛز یی ترمیٖم کرنہٕ بیاکھ اکھ اہم چیٖز چھُ یُس زن ایگریکلچر مارکیٹنگ رِفارمٕز چھِ یعنی اصلاحات یِن کرنہٕ تاکہ یم زن أسۍ ییٚتہِ پٲداوار چھُ اسہِ حٲصِل سپدان زرعی پٲداوار یہِ واتناوو أسۍ اصل پٲٹھۍ منڈین تام تہٕ زمیندارن ہٕنٛز آمدنی منٛز گژھِ ہُریر تہٕ بٔرژر بیاکھ اکھ اہم پویِنٹ یُس زن اتھ منٛز چھُ کہِ یُس زن أسۍ ونکیٚنس پروکیورمنٹ کران چھِ زمیندارن ہُنٛد یُس زن پٲداوار چھُ چاہے سُہ دانہِ آسہِ کٕنٕک آسہِ سبزی آسن یہِ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ لگ بگ 6,700 کرور رۄپین ہُنٛد مد تھاونہٕ آمُت غرض چھُ یہِ کہِ یُس زن یہِ زمیندار طبقہٕ چھُ أمۍ سٕنٛز یُس زن بہبوٗدی چھِ سۄ گٔژھ یقیٖنی بنٕنۍ تہٕ أمِس یُس زن آمدنی چھُ تتھ منٛز گوٚژھ ہُریر تہٕ بٔرژر گژھُن یم زن فاینانس منسٹرن یمن پوینٹن ہُنٛد اعلان کوٚر پریس کانفرنسہِ منٛز امیُک مُدا و مقصد کیاہ چھُ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن سٲنۍ زمیندار امہِ سۭتۍ مستفید سپدِتھ أتھۍ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ آز پننِس پروگرامس منٛز کتھ تہٕ کتھ کرنہٕ باپتھ چھِ أسۍ کٔرمٕتۍ مدعو محمد اقبال چودھری صٲب یم زن جویِنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کشمیر چھِ یمن سۭتۍ کرو أسۍ أتھۍ موضوٗعس پٮ۪ٹھ کتھ چودھری صاحب السلام علیکم میں شکر گزار ہوں آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے چونکہ جو پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک پیکیج کا اعلان کیا اس کے خدوخال جو بعد میں فائنانس منسٹر نے بیان کیے 2-3 پریس کانفرنسز انہوں نے لگاتار کی تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پیکیج سے کیا فائدہ ہوگا ایک کسان کو اور کیسے بینیفٹ ہوگی اوور آل فارمنگ کمیونٹی؟ دیکھو میں سب سے پہلے تو کرشی درشن کشمیر کا شکر گزار ہوں جی کہ انہوں نے آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہاں مدعو کیا جی کہ میں ہماری گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہمارے کسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کچھ خاص اقدامات لیے ہیں ان کے بارے میں آپ سے وضاحت کر سکوں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارا جو کسان ہے ہمارے روزی کا دار و مدار سارا اسی کے اوپر ہے جی اور جب ہم اس مشکل حالات سے گزرنے لگے کووڈ-19 سے تو اس وقت ہمارا جو ربی کا سیزن تھا جی وہ اپنے اختتام پہ تھا
क्योंकि जो हमारे रबी की क्रॉप्स थी उनकी हार्वेस्टिंग होने वाली थी, वो तैयार हो चुकी थी, वो खेतों तैयार में। हो चुकी थी, और जब फसल तैयार हो जाए तो उसको काटने के लिए लेबर की जरूरत होती है। गवर्नमेंट ने एक जामा मंसूबा बनाया कि किस तरीके से जो हमारी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं उसको हार्वेस्टिंग को ये लोकल लेवल पे जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे जो पैकेज नेशनल लेवल पे जो हुए, जो ये ऐलानात हुए, जब भी कोई ऐसी नामसाइल हालात आते हैं तो गवर्नमेंट किसानों के लिए सबसे फ्रंट फुट पे आती है। उन्होंने ये ऐलान किया क्योंकि एग्रीकल्चर में क्रेडिट दिया जाता है बैंक से जी। हमने लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड लोगों के बनाए, उसके लिए हमारा एक मखसूस टाइम था कि हमने 31 मार्च से पहले उनको पूरा करना था। अगर कोई किसान किसी वजह से रह गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर में इनपुट्स खरीदने के लिए एक अच्छे खासे पैसे की जरूरत होती है, इसके लिए जो हमारे बैंक्स हैं वो किसानों को कम सूद की शरह पे उनको लोन देते हैं जी। उसका एक जो मखसूस पीरियड होता है कि अगर उसके अंदर वो उसको रिमिट कर देता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं लगता, अगर उससे बाहर जाता है तो फिर भी बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका 5-6% का जो इंटरेस्ट आता है बड़ा कम होता है। लेकिन सबसे पहला जब गवर्नमेंट किसानों के फ्रंट फुट पे आ गई, उन्होंने किसानों की मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुश्किल हालात में सबसे पहले जो इनका जो 3 महीने का असल की उसकी जो रिपेमेंट करनी थी उसकी प्रिंसिपल मोरेटोरियम लगा दिया इनके लोन्स पे, वो लगा दिया, और जो उसका इंटरेस्ट था वो भी नहीं लिया जाएगा। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी एक राहत थी जी। क्यों कि अगर वो जाते तो हमारा किसान जो है वो किसानी छोड़ने से गुरेज नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं जब खेती बाड़ी कर रहा हूँ, इसको आगे ले जा रहा हूँ, अपने मुल्क में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए फसल उगा रहा हूँ, तो मेरे बैक फुट पे भी कोई है कि जिससे मुझे नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज अगर इन चीजों का गवर्नमेंट कोई प्रोविजन नहीं बनाए तो अब जब हमारे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और हमारा जो हमारे क्राइसिस बढ़ जाते हैं एग्रीकल्चर में, क्राइसिस जो है वो इससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज्यादा ये किसान जो है अभी मजबूर नहीं हो जाएंगे कि मतलब इस लिहाज से कि किसान को इनपुट्स खरीदने के लिए जिस पैसे की रकमात की जरूरत थी उससे हमारा किसान बिल्कुल मुतासर नहीं हुआ और ना होगा। दूसरा पॉइंट जो है चौधरी साहब ये है कि 30,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए, नाबार्ड के जरिए से इस वर्किंग कैपिटल को अमलाया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको, क्या फायदा बुनियादी सतह पे होगा? देखिए, ये जो नेशनल लेवल पे ये पैकेज जो नाबार्ड के थ्रू गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, इसमें हमारे हिस्से में हमारे यूनियन टेरिटरी में क्या मिलता है, अभी नाबार्ड जो है वो इसके बीच में अपनी गाइडलाइन बनाएगा, क्योंकि नाबार्ड जो बैंक है ये किसानों के लिए बैंक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एक मखसूस जिम्मेदारी दी है कि इन किसानों को इस डिस्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए क्या क्या इकदाम लिए जा सकते हैं। जो भी इकदाम उसके लिए लिए जाएंगे, नाबार्ड जो है वो उसके लिए हम लोगों को, हम किसानों के उनके साथ मिलके उनके लिए आगे काम करेंगे। उसके लिए जो ये बड़ा वसी पैकेज है, फिर ये डाउन जब आगे आगे होता जाएगा, जरूरियात के हिसाब से इसकी स्कीम बनेंगी। देखिए, इसके जरूरियात से देखो, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है ना, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से डिफरेंट है जी। जैसे हमारे कश्मीर के लिए किस फसल के लिए जरूरत है, किस चीज के लिए देना है, जम्मू में किस चीज के देना है, किस चीज की जरूरत है, किस कंपोनेंट में देना है, अगर प्रोड्यूस हुई है तो उसको मार्केट तक ले जाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, उसमें फंडिंग की जाएगी। अगर लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि किस तरीके से भाई आपको ये पैदावार को इस वक्त, इस मुश्किल वक्त के दौरान में कल्टीवेशन को जारी रखना है, उसके लिए चाहिए एडिशनल किसी पैसे की जरूरत है, उसको दी जाएगी। जो हमारे FPOs हैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको अवेयरनेस देने के लिए अगर उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये देखा जाएगा कि वक्तन फवक्तन किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो कनेक्टिविटी है, जो मार्केट के साथ जिसकी लिंकेज करनी है, ये चीजें ना गुजरें। क्योंकि अगर हमारा किसान पैदावार तो करेगा, अगर उसकी जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगी, जब मार्केट तक नहीं पहुंचेगी तो उसको वो अच्छी कीमत वहां से नहीं आएगी, उसको जब कीमत नहीं मिलेगी तो उससे उसको नुकसान हो जाएगा, और वो अल्टीमेट नुकसान जो है वो हमारा, हम सब लोगों का नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़े जामा मंसूबे बनाए हैं, जिनके लिए कि हमारा जो किसान है वो, हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारी ऑलरेडी एक स्कीम चल रही थी, इसका दायरे कार जो है वो उसी होगा अब इन इकदाम के बाद, तो इसके कर्जे जो हैं इस तहत जो मिलेंगे कंसेशनल रेट्स पे, इससे क्या फायदा होगा? इस जिम्मन में मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जिस तरीके से हमने पहले अभी डिस्कस किया कि प्रिंसिपल अमाउंट को भी गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए हेल्ड अप किया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का देना था उसको भी गवर्नमेंट ने हेल्ड अप किया जी। इसके साथ साथ अजाफी किसी जगह पे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है, एडिशनल किसान को पैसा चाहिए और उसकी जो रेट है वो बढ़ा सकता है नाबार्ड दूसरी स्कीमों के बीच में ला सकता है, और जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर खाली
کھیتی باڑی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی الائڈ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بیچ میں اینیمل ہسبینڈری آتا ہے، اس میں ہارٹی کلچر آتا ہے، اس میں سیری کلچر آتا ہے. یہ تمام جو سکیمیں ہیں کہ یہ جو مخصوص ٹائم پہ جس چیز کی ضرورت ہوگی اس چیز کے لیے یہ نبارڈ اس کو فنڈنگ کرے گی، اور اس کے بہت جلدی ہی اس کے لیے ایک عملی جو منصوبہ ہے جو گراؤنڈ لیول پہ جائے گا یہ منظر عام پہ آ جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو دیکھ لیں گے. چودھری صاحب ہمیں رکنا پڑے گا ایک وقفے کے لیے. ناظرین پیش ہوئی وقت پتہ سپدو اس تہندس خدمتس مز بیٚیہِ حٲضِر. رٹ بیون بس یہ کیا بیا بس کمائی کی میری کھاد کاشتکاری چھ نہ کریں کاشتکاری نا نادی نشم تراویں میچ سن پرخیشم کرنمت ازگی پیٹ یژی کھاد بکار آئیسے تیزی کھاد تراو زمینس. ہاں کاشتکار بائی پننہِ میٚژِ ہُنٛد ٹیسٹ انناو پننِس ضلعس منٛز نزدیکی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری منٛز کرنٲوِتھ تہٕ مُقوی عنصرن نمی تہٕ کُلٮ۪ن ہٕنٛز ترقی وٕچھِتھ رلاو ضروٗرت مُطٲبق مُقوی عنصر تہٕ آب ییٚمہِ سلفر زنک تہٕ بورون ہِوۍ مُقوی عنصر نظر انداز گژھن. کھاد تو آرگینک کھاد مناسب طریقس مز استعمال کرنے سے بنائیو زمین زرخیز پیداواریت بڑھائیو لاگت کریو کم تو ملک بدیشی زر مبادل بچاونس مز کریو مدد. تہٕ تِمن کھادن دِیو ترجیح یِم کم رفتار نائٹروجن فراہم کران چھِ مثالے یوریا یتھ منرل آسہِ تہٕ کٔرِو ؤتھرن پٮ۪ٹھ یوریاہُک چھِرکاو. اے واہ ژٕ چھُکھ بے شک سمجھدار بنیومت. مزید جانکاری خاطر کریو ڈسٹرکٹ ایگریکلچر افسرس یا کسان کال سینٹر سے رابطہ قائم. ناظرین وقفہ پتہ بے اکہ لٹہ تہد خیر مقدم یت کرشی درشن پروگرامس مز تو آز کت کران یت پروگرامس مز تتھ پیکیجس متعلق اس زن زرعی شعبہ خاطر مختص آو کرنا تو یمچ ذکر فائنانس منسٹرن پتمن کینچن دہن پریس کانفرنس دوران کور. تو اس مہمان ونکس محمد اقبال چودھری صاحب یم زن جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر. چودھری صاحب اس ونتو چونکہ یوتان اس کشیر ہز کت کران کشیر مز وچھان کہ یم زن کسان کریڈٹ کارڈن یہ سسٹم زیادہ لوگ اس کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے. اب کیا اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں؟ اس چیز کا جب ریویو لیا گیا کہ لوگ اس چیز کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں تو ہماری یونین ٹیریٹری کے چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوگی جی. اس کے بیچ میں ایک ٹائم فریم ایک ڈیڈ لائن طے کی گئی. ڈویژنل لیول پہ ڈویژنل کمشنر صاحب نے میٹنگ میں بلا لی. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے بینکرز تھے ان سب کو ہم نے ڈائریکٹری لیول میں بلا کے ہم نے ڈسٹرکٹ میں ایک منصوبہ بنایا جی. ڈسٹرکٹ جو لیڈ بینک آفیسر ہے ان کی ہمارے چیف ایگریکلچر افسر صاحبان ان کی سربراہی میں ٹیمیں بنی جن میں بھی ایگریکلچر اور رائل سیکٹر کے جو لوگ تھے ان سب کی میٹنگیں ہوگی. اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کا ایک بہت بڑا اہم رول تھا اور وہ جو رول انہوں نے ادا کیا جی. جب میٹنگیں ہوگی تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر گزر گیا کہ 31 مارچ سے پہلے کوئی بھی کسان جی ہماری یونین ٹیریٹری کا اس دائرے کے اندر سارے کے سارے کور ہونے چاہیے, کوئی بقایا نہیں بچے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا وہ جو ہم نے ہدف طے کیا تھا جی. ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جو ہمارے پی ایم کسان کی اسکیم کے تحت لوگوں کے اکاؤنٹ غلط ہونے کی وجہ سے, لوگوں کا نام غلط ہونے کی وجہ سے, لوگوں کے آدھار کارڈ کی انٹری نہ ہونے کی وجہ سے یہ تھا, ہمارے لوگوں نے دن رات محنت کر کے جس کو پاسبل بنایا اور وہ پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے اکاؤنٹ. فائنانس منسٹر نے اس کا بھی ذکر کیا کہ 18,500 کروڑ روپیز جو ہیں وہ تفویض ہوئے ہیں بالکل بینک کھاتوں میں. ایک تو یہ ریگولر جو انسٹالمنٹ ان کو جانی تھی وہ بھی گئی, اور جو لیفٹ آؤٹ کیسز تھے ان کے لیے بھی منصوبہ بنایا گیا اور وہ جا رہے ہیں. اگر کسی جگہ پہ ایک آدھ پرسنٹ نہیں ہوں گے وہ صرف اس وجہ سے رہ گئے ہوں گے کہ اس بیچ میں کبھی تھوڑا سا نیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کنیکٹیوٹی جب ڈسٹرب ہو جائے تو اپلوڈنگ میں دقت آتی ہے, ٹائم لیتا ہے, ٹائم کنزیومنگ ہے. باقی ہم نے جو ہدف لیا ہوا ہے کہ کسانوں کے ساتھ کندھے سے کاندھا ملا کے ہم کام کریں گے, اس ہدف کو ہم پورا کریں گے اور یہ ہمارا مشن ہے. جب تک ہم اپنے اس مشن کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. ایک اور اہم نقطہ جس پہ ہم وضاحت چاہیں گے وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ کروڑ روپے انفراسٹرکچر فنڈ فارم گیٹ کے لیے مختص رکھا گیا. اس سے ہم کیا دیکھیے, یہ جو فارم گیٹ ایکٹیویٹی ہے یہ ایک بہت بڑی اچھی ایکٹیویٹی گورنمنٹ نے دی ہے. اس کے جی ہمارے کسان کے پاس کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک مثال لیتے ہیں, ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے ہمارا ایک کسان ہے, ہمارے کسی ڈسٹرکٹ میں کسی چیز کی ایک غلط پروڈکشن ہوتی ہے, پیداوار زیادہ ہوتی ہے, قیمت اچھی نہیں آتی ہے.
गवर्नमेंट ने इस सब को जो एक्ट में तरमीम की है, इस सारी चीज के एक्ट में लाया गया है कि अब इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा और किसी जगह जाके, एक जगह से जाके दूसरी जगह हमारा किसान बेच भी सकेगा और उसको डिपार्टमेंट क्या फैसिलिटी क्रिएट करेगा। हर लोकल लेवल पे, हर पंचायत लेवल पे, जैसे हमने कोशिश की है कि हम गोदाम बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में गोदाम बनाएंगे, अगर उनका प्रोड्यूस जो है वो वहां आएगा, हम उसको स्टॉक करेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये उसी की एक कड़ी है कि हमारे पास जिन जिन चीज़ों की पैदावार है, जैसे हम सब्जियों की एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास कश्मीर में ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं कि जहां हम साल भर सब्जियों की रोटेशन से सब्जियां उगा सकते हैं जी। जबकि उस वक्त हमारे मुल्क के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं वहाँ की क्लाइमेट वहाँ अलो नहीं करती कि वहाँ फ्रेश सब्जियां उनको अवेलेबल हों। हम यहाँ से बेच सकते हैं, लेकिन बेचते थे जिस वक्त हम रूटीन में ट्रक में बेचते थे तो वो ये पेरिशेबल आइटम है जी। ये इसकी जो क्वालिटी थी ये खराब हो जाती थी। इसके लिए एक जामिया मनसूबा बना कि जैसे हमारे कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं इनके लिए हमने रेफ्रिजरेटेड गाड़ियों का इंतजाम किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी अलॉट की। वो गाड़ियां देने से ये फायदा होगा कि जो हमारा वो प्रोड्यूस होगा वो किसान को अच्छी कीमत आए, वो सीधा टर्मिनल मार्केट तक, वो चंडीगढ़ लेना चाहे, वो कोई परेशानी ना हो, कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जिसका फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया कि इसमें अमेंडमेंट लाई जाएगी, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कैसे एक फार्मर को इस एक्ट से फायदा मिलेगा? इसमें जो गवर्नमेंट ने एक्ट में तरमीम लाई, जो 65 साल के बाद ये तरमीम आई, इसमें जैसे हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स दालें जो हैं ना, सीरियल क्रॉप्स हमारी होगी, जैसे मक्की होगी, पैडी होगी, वीट होगी। उसके बाद हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स हो गए, जैसे हमारे कश्मीर में ऑयल सीड में सरसों बहुत अच्छी किस्म की होती है जी। जब हम यहाँ, और हमारे पास यहाँ 82,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो सरसों की काश्त की जाती है उसको, जिसकी हार्वेस्टिंग जो है अभी इन दिनों में शुरू होगी जी। इसका जब सीड प्रोड्यूस होगा, इससे जो तेल निकलेगा जिस क्वालिटी का, हमारा किसान अगर उसको अच्छी कीमत लगेगी किसी दूसरी जगह जाके, वो बाहर जाके उसको आराम से बेच सकता है जी। इसी तरीके से ये आप देख लें, आपको जान के खुशी होगी कि जैसे रेट्स वगैरह पे कुछ कैप, हाँ रेट पे कैप लगेगी, कंट्रोल रहेगा, घाटा नहीं होगा, बिल्कुल कंट्रोल रहेगा ताकि किसान को नुकसान भी ना हो। और वो लोग जो कि इन चीजों को लेके अंदर रख के बाद में ब्लैक मार्केटिंग करते थे, इस सारी चीज का कंट्रोल हो जाएगा जी। ये एक बहुत बड़ा जामा मनसूबा गवर्नमेंट ने बनाया है कि जिससे कि हमारे किसान को फायदा होगा जी, बहुत बड़ा फायदा होगा। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स जो हैं, समझा जाता है कि जब किसान की पैदावार ज़्यादा हो जाती है, चाहे सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, मक्की या दान, तो फिर वो कम रेट पे बेचने पे वो मजबूर हो जाता है। वो जो यही एक्ट जिसमें कल तरमीम हो गई है, ये एक्ट उसी के बचाव के लिए एक्ट जो है तरमीम लाई गई है इसके बीच में। तो हमारी कौन कौन सी फसलें इसमें इंक्लूड? मैंने आपको बताया कि हमारी सीरियल क्रॉप्स सारी की सारी, वेजिटेबल तो हम लेते ही बाहर जी, पल्सेस सारी की सारी, ऑयल सीड सारी की सारी जी, हमारे जो जितनी भी क्रॉप सारी हैं गवर्नमेंट ने सारी की सारी जो है वो दायरा कार के अंदर लाई हैं और इससे हमारे किसानों को बहुत, और खासकर आप देख लीजिए कि हमारे जहाँ कश्मीर में जो सैफरान होता है, जो हमारे पामपुर पुलवामा में सैफरान होता है, उसकी हाल ही में जीओ टैगिंग भी हुई है, उसकी हाल ही में जियो टैगिंग भी होगी। जियो टैग से ये मुराद है कि हम लोगों को एक अपनी आइडेंटिटी मिल गई जी, कि ये इस आज की काश्तकारी यहाँ नहीं है, इसकी हिस्ट्री है कि हमारा 500 साल से पुराना काश्तकारी सैफरान की चल रही है। जिस वक्त इसके साथ लोग क्या करते थे कि इसमें अडल्ट्रेशन करके हमारे सैफरान की कीमत को डिग्रेड करते थे जी, अब वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो देखेंगे। और इसी जिम्मन में जब हमारी ये जियो टैगिंग होगी, इसी सैफरान के लिए हमारे यहाँ पाया हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल की लैब बनी है दूसरी जी। उस लैब के अंदर वो सारी की सारी टेस्टिंग होगी। उस टेस्टिंग के होने के बाद जिस वक्त उसमें सर्टिफिकेशन हो जाएगी, वो जियो टैग का वो दुनिया के किसी कोने से भी वो आदमी बैठ के देख सकता है कि ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, वो किसान कौन है जिसने भी इतना प्रोड्यूस दिया, उसके पास खेत कितना है जी। और उस लैब में जब टेस्टिंग के बाद वो निकलेगा तो वहीं ई मार्केटिंग की फैसिलिटी क्रिएट की गई है। किसान को उठा के उसको लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो अब परेशानी नहीं हो, पहले परेशानी नहीं होगी, अडल्ट्रेशन हो जाती है, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल इन सब चीजों को रोकने के लिए, ताकि हमारा किसान किसी जगह से नुकसान में ना आए, वो वहां से बैठ के ई मार्केटिंग का प्रोविजन उसमें रखा गया है। ई मार्केटिंग से बैठ के उसी एक हाल से ब्रांडिंग के तहत पूरी ब्रांडिंग, उसमें टैगिंग, ब्रांडिंग, एवरी जो उसके लिए स्टेप्स, एसेंशियल स्टेप्स हैं, उन सबको हमें इन्फॉर्मेट कर दिया। तो प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 6,700 करोड़ बिल्कुल रखे हैं, इसका क्या आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस जिम्मे में मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि हमारे जहाँ पहले हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो हम असली प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो हमारा रबी सीजन गया इस वक्त की बात कर रहे हैं, ऑयल सीड क्रॉप जिसमें सरसों है।
सरसों की जो हमारे यहाँ पैदावार होती है और जो क्वालिटी होती है और जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा नेशनल लेवल से भी ज़्यादा हमारे कश्मीर में है जी। अगर वहाँ 7.5 क्विंटल हमें 1 हेक्टेयर से मिलती है तो हमें यहाँ 10 से 11 क्विंटल 1 हेक्टेयर से मिलती है। और हमारी जो उसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की क्वांटिटी है वो परसेंटेज जो है वो भी उससे ज़्यादा है। हम उसको यहाँ उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं, फिर वो सीड उसकी सर्टिफिकेशन करके फिर दोबारा किसानों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी। उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास जैसे इस वक्त हमारा खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया, उस खरीफ सीजन स्टार्ट के लिए हमारे पास पैडी की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। उस वक्त जी हम सीड विलेज लगाते हैं, हम यूनिवर्सिटी से ब्रीडर सीड लाते हैं, उसका अपने जो हमारे डिपार्टमेंटल फार्म है वहाँ फाउंडेशन सीड बनाते हैं, उस फाउंडेशन से फिर फाउंडेशन 1 बनाते हैं। मतलब अगर किसान के पास ज्यादा पैदावार निकलती है तो आप उसको लेने के लिए तैयार हैं? इसके लिए बाज़ाब्ता हमारे डिपार्टमेंट के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी जाएं तो वहाँ से प्रोक्योरमेंट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जहाँ से प्रोक्योरमेंट करनी होती है हम पहले वहाँ सीड विलेज लगाते हैं जी। जो फुल पैकेज या प्रैक्टिस है, जो उसके बीच में खाद की मिकदार कितनी डालनी है, अगर किसी जगह कोई बीमारी लगी उसको उसे कैसे कंट्रोल करना है, उसकी बाज़ाब्ता डिफरेंट लेवल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लेवल पर उसकी इंस्पेक्शन होती है। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जिस वक्त फाइनल हो जाती है कि वो हर लिहाज से साफ है, उस वक्त उसके बीच में से वो सिलेक्ट किया जाता है कि इस एरिया जो है इसकी हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग होती है उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है वो भी कंप्लीट किए जाते हैं, फिर उसके बाद बैठ के उसकी प्रोक्योरमेंट की जाती है और स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं किसान को। चौधरी साहब हमें रुकना पड़ेगा एक और वक्फे के लिए। नाजरीन पेश हुई वक्फ पद सदो बे तुहंदिस खिदमतस मंज हाजिर। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाजरीन वक्फ पद बे एक लट तुहद खैर मकदम यथ कृषि दर्शन प्रोग्रामस मज तो तशरीफ थयित मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब। चौधरी साहब किसान क्रेडिट कार्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, आमतौर से शिकायत ये आती है कि इसका जो अमल है थोड़ा सख्त बनाया गया है, बैंक उतना कोऑपरेट नहीं करते हैं, जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता है। डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ कर रहा है? डिपार्टमेंट ने इसके लिए बाज़ाब्ते से एग्जाम चुना और अब से शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो रहता है कि जिसमें मिनिमम किसान को डिलीवर करनी पड़े, डिपार्टमेंट ने ये फैसिलिटी किसानों के लिए क्रिएट की है और हमारा कोई किसान जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से अलग नहीं रहेगा जी। ये 100% अचीवमेंट हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है और हमने अचीव किया और हम कर, अगर किसी जगह पे भी कोई लैकुना आएगा हम उसको ओवरकम करेंगे। तो मगजबानी के लिए भी कुछ इंसेंटिव्स कुछ प्रोग्राम्स का कल अनाउंसमेंट हुआ है, तो कैसे आप इसको देखते हैं कि कैसे हमारे जो मगजबान हैं जो हनी बी कीपिंग के साथ करते हैं कैसे फ़ायदा होगा उनको? देखिए ये आपने एक वक़्त के लिहाज से एक बड़ा अहम सवाल किया। एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि बी कीपिंग एक एक्टिविटी है जी। अल्लाह के फजल से हमारे कश्मीर के अंदर इतना अच्छा फ्लोरा और फना है कि जिससे हम दुनिया में बेहतरीन किस्म का शहद जो है वो यहाँ हासिल करते हैं जी। जब यहाँ हमारा एंडिंग मार्च से जो सीजन स्टार्ट हो जाता है कश्मीर में फ्लावरिंग का सीजन जी, जब यहाँ पे फ्लोरा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे किसान हैं वो माइग्रेशन करके अपने इस जो उनके पास जो अपायरीज होती हैं जी उनको बैरूनी रियासत ले जाते हैं। उनमें राजस्थान सर फहरिस्त है, उत्तर प्रदेश उसके बाद आती है जी, साथ साथ में हरियाणा है, पंजाब में है और जम्मू में भी ये लोग कैंपिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो वक्फा मिलता है उसके बीच में हमारा किसान यहाँ 2 फसल लेता है, उसके बाद जो उसको मैक्सिमम फसलें आती हैं वो बाहर जाके आती हैं। अगर तो वो यहाँ रहे इस स्कीम से कुछ होगा फायदा उनका? बहुत बड़ा फायदा होगा। गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया है इस चीज को कि एपीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इनकी जो जितनी भी जो चीजें हैं इनकी प्रोक्योरमेंट करनी है। और अभी परसों गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया कि जितना हमारे किसानों के पास जो हानि है वो सारे के सारे नेशनल हार्टिकल्चर हमारा जो ये प्लानिंग है इनके थ्रू उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है। और उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि जितना भी चीफ एग्रीकल्चर अफसर को हदायत इशू की गई है कि
ग्रास रूट लेवल तक जाके तो मार्केटिंग करने में चूंकि हमारा जो हनी है क्वालिटी हनी है इसके लिए पूरी गवर्नमेंट दुनिया ने में एक मशहूर है। एजेंसी को डिजिग्नेट कर दिया कि जितना के जितना शहद है, ताकि किसान को दूर न जाना पड़े, सारे का सारा जो है वो प्रोक्योरमेंट करिए, वो एक जगह प्रोक्योर करके उन किसानों को उसके पैसा मिल जाना चाहिए, और वो गवर्नमेंट ने खुद जिम्मेदारी उठा ली है इस चीज। तो मुश्क भुज्जी बड़ा एक हमारा अच्छा ब्रांड है, उसमें क्या बिल्कुल फायदा मुश्क मिलेगा? भुज्जी हमारी यहाँ की एक पहचान है, उसके लिए हमने एक बहुत बड़े इकदाम लिए हैं। वो हमारा एक स्पेशल पर्टिकुलर एक बेल्ट है अनंतनाग के एरिया में, वहाँ पर मुश्क भुज्जी है, ये एक बहुत बड़ा अच्छा चावल है। ये हमारी कश्मीर की एक पहचान है। कश्मीर का चावल तो अपने आप में एक पहचान है, लेकिन मुश्क भुज्जी उसके ऊपर एक डेढ़ मिनट है चौधरी साहब हमारे पास। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल जो पैकेज है फाइनेंस मिनिस्टर का या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, कैसे ये एक दुआम बख्शेगा हमारे किसानों को? देखिए, जहाँ तक इस पैकेज का सवाल है, इस मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट किसान के डोर स्टेप पे आई, उसने किसान के लिए डिफरेंट स्कीम्स का ऐलान किया, और हम जो आगे इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स, ये हम लोगों का अवलीन फर्ज बनता है कि हम अपने किसानों तक ये जानकारी देंगे, और हम अपना फर्ज निभाने में कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि हमने ये मुश्किल वक्त जिस कोविड से हमारा किसान निकला है, और इसके दौरान भी इन्होंने किसानी को जारी रखने का फैसला किया है, हम भी इनके साथ कांधे से कांधा मिला के शहाना बशाना तैयार चल रहे हैं, चलेंगे। और हमने आपकी जानकारी के लिए, हमने किसानों के लिए जिन जिन इनपुट्स का अरेंजमेंट, जो हमारा खरीफ सीजन है, हमारी पैडी का सीड था, हमारी मक्की का सीड था, हमारा वेजिटेबल था, हमारा वेजिटेबल सीडलिंग था, हमारा पल्सेस का सीड था, हमने पिछले सालों के मुताबिक इस साल ज्यादा सीड किसानों को, और आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ से बता दूं कि हमने डोर स्टेप पर किसानों को खाद बीज मुहैया करवाए। बहरहाल चौधरी साहब, हम उम्मीद करेंगे कि इससे फ़ायदा हो हमारे किसान का, उसकी आमदन बेहतर से बेहतर हो। नाजरीन, इस करो उम्मीद कि यम जन फाइनेंस मिनिस्टरन तो यम जन सन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, तमो इस पैकेज ऐलान कोर तो तम पे यमिश वजाहत कर फाइनेंस मिनिस्टरन, इस करो उम्मीद कि यम जन सन किसान बुनियादी सतहस पे, चाहे तिम कुन ति शोबस सत वाबस्त, चाहे तिम दानि काश्त करान, सब्जी काश्त करान, माछ गणन सत वाबस्त, चाहे हेडर वोपदावान, यम ति कह सरगर्मी तिम करान, तिम सपदन अम सत मुस्तफीद। मगर जरूरत यतनस यम कथ हिंस कि तिम करन मुतलिक महकम युस जन एग्रीकल्चर महकम यम सत करन रब्त कायम करित, तिमन स्कीमन मुतलिक जानकारी, तिमन मुरातन मुतलिक जानकारी हासिल, तेल हेको अस वनित बुनियादी सतहस पे यस जन सोन जमींदार अम सद जो इक्तिसादी हालत यह बन बेहतर, तो यह हेकि पन्ने सरगर्मी बेहन ब्रोह कुन पकनयित, तो यह हेकि पूरे मुल्क खतर गजा तैयार करित। अस करो उम्मीद कि यह पैकेज यह बन सान खतर वारिया फायदेमंद तो फायदे बख्श। चौधरी साहब, तशरीफ आवरी के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, तुहद तो शुक्रिया। अत वोत सानि अज़के प्रोग्राम वक्त आन। इंशाअल्लाह ताला करो आइंद तो बे मुलाकात, तो ताम दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।